अटेंडेंस नहीं ली, लेकिन वही लगा देंगे, ठीक है। ओके, मैंने कहा था कि ये फिगर 2 और 3 रेप्लिकेशन वाला बना के रखना, लिखवाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो फिगर 2 और 3 ये रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। अब अपने उसमें रजिस्टर में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा लिख लो, फिर से जो है ये समझा तो दिया था मैंने रेप्लिकेशन वाला, और इसमें फिर कोई क्वेश्चन हो तब पूछ लेना। उसके बाद में फिर मिस्टेक्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, या जिसको कहते हैं फिडेलिटी इन डीएनए रेप्लिकेशन, वो बताएंगे। फिडेलिटी इन डीएनए रेप्लिकेशन का मैंने एक डॉग फाइल जो है अभी थोड़ी देर पहले उस पे क्लासरूम पे अपलोड करी है, उसको भी डाउनलोड कर लेना। तो उसमें बताएंगे, उसमें कुछ फिगर्स दिए हैं जो इसमें भी हैं, इस वाले पीडीएफ में भी हैं जो ऑलरेडी आपके पास है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन वाला, और उसमें भी कुछ अच्छे फिगर्स हैं फिडेलिटी वाले में। फिडेलिटी का मीनिंग होता है लॉयल्टी, मतलब कितना लॉयली जो है वो ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मतलब उसमें क्या कोई डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या कुछ गलतियां होती हैं या एकदम एरर फ्री होता है। तो मोस्टली एरर फ्री होता है, बहुत हद तक एरर फ्री होता है, लेकिन कहीं कहीं पे उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। और ये जो नेचुरल जो मिस्टेक्स होती हैं, इसी की वजह से जो है म्यूटेशंस होते हैं, या जो है वो मतलब डॉटर या प्रोजेनी में जो डिफरेंट फीचर्स जो आ जाते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं, जो फिडेलिटी जो हो जाती है, मतलब जो मिस्टेक्स आ जाती हैं रेप्लिकेशन के टाइम में। तो फिडेलिटी एज सच का मीनिंग होता है फिडेलिटी और लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स कि कितना सही फुल प्रूफ तरीके से कितना अच्छे से रेप्लिकेशन होता है, और मिस्टेक्स जो है होती हैं कि नहीं होती हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में लिखिए कि डीएनए रेप्लिकेशन implies cell division. DNA replication implies cell division. When a cell divides into two, each having its own complete genome. The two daughter cells are complete in all respects. The two daughter cells are complete in all respects and can survive on their own. This process is known as DNA replication. This process is known as DNA replication. Specifically, the double-stranded DNA of parent cell मतलब जो डिवाइड हो रही है, और डॉटर सेल्स मतलब जो दो नई बन रही हैं। स्पेसिफिकली दी DNA of parent cell
which is double stranded, splits into two single strands. Splits into two single strands. Each of the single strands acts as template and a new complementary strand attaches to it, forming two sets of double-stranded DNA. Which are incorporated in the daughter cells. This process of replication follows standard Watson-Crick base pairing. This process of replication follows standard Watson-Crick base pairing. And is controlled by DNA polymerase enzymes. The separation or unwinding of, separation कह लो या unwinding बोलो, the separation of or unwinding of the two strands of parent DNA is shown in figure 1. फिगर 1 बोल रहे हैं जिसमें ये इसकी पीडीएफ की फिगर 2 बनेगी, जिसमें ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ये अलग अलग करके दिखाए हैं और ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड जो है बनता हुआ दिखाया है. The separation of two strands of parent DNA into two strands is shown in figure 1. उसको कर सकते हो. Both the single strands receive the complementary strands simultaneously
Both the strands receive the complementary strands simultaneously. But the main coding strand is synthesized first. But the main coding strand is synthesized first continuously, called as leading strand. The other strand receives the complementary strand. The other strand receives the complementary strand in small fragments of about 1000 bases. In small fragments of about 1000 bases. These short fragments are called Okazaki fragments. These short fragments are called Okazaki fragments. Different DNA polymerase enzymes. Different DNA polymerase enzymes. Polymerase 1, 2 and 3. Polymerase को शॉर्ट में POL लिख लेना. Different DNA polymerase enzymes. Polymerase 1, 2 and 3 are involved in the process. But they cannot initiate double-stranded DNA synthesis. Different DNA polymerase enzymes, polymerase 1, 2 and 3. 1, 2, 3 भी रोमन में लिखना है. Polymerase 1, 2 and 3 are involved in the synthesis of double-stranded DNA, but they cannot initiate the process. The synthesis of double-stranded DNA is initiated by a small strand of RNA having about 20 bases and a free 3' hydroxyl group. And a free 3' hydroxyl group.
20 bases and free 3 prime hydroxyl group. Called as primer. ये रिक्वायरमेंट होती है सिंथेसिस के लिए, कॉल्ड एज प्राइमर, मतलब स्टार्टिंग के लिए। बिना प्राइमर के स्टार्ट नहीं होता है, जैसे लास्ट टाइम बताया था, कॉल्ड एज प्राइमर। अब इसमें जो है वो, अब एक चीज और लिख लो कि दी synthesis of DNA proceeds from 5 prime to 3 prime। उसकी जो फॉर्मेशन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज 5 prime to 3 prime। So DNA biosynthesis proceeds from 5 prime to 3 prime direction। अगर ये फिगर देखोगे तो इसमें देख सकते हो वही फिगर 2 में कि लीडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम वही कॉन्टिन्यूअस एरो बनाया हुआ है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले का जो सिंथेसिस हो रही है वो भी जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स के लिए छोटे छोटे एरो बने जहाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन वो भी जो एरो हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सिंथेसिस वाला तो जो ये रहता है सिंथेसिस हमेशा जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डीएनए सिंथेसिस ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ऑलराइट, अब जो इसमें फिर जो पीडीएफ में जो है बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो पिछली बार बताया था कि उतना डिटेल में तुमको नहीं चाहिए, इसीलिए लिखवा रहे हैं। जो मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं डीएनए रेप्लिकेशन में वो लिखवा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स तो ये हो गए, फिर वो लिखना है कि पॉलीमरेज 3 और 1 जो है वो ऑल्टरनेटली जो है काम करते रहते हैं। तो बाकी इसमें थोड़ा सा स्किप करके वो लिख लो कि the DNA biosynthesis proceeds by alternate activities of polymerase 3 and 1। ये फिगर 3 के बारे में है, जो फिगर 3 आपकी पीडीएफ में बनी हुई, उसमें पोल 3 फिर पोल 1 फिर लाइगेज की एक्टिविटी दिखाई है। पोल मतलब पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी, जिससे ये येलो एरो में जो दिखाए हुए हैं ये फ्रेगमेंट्स बने। फिर पॉलीमरेज 1 से वो फ्रेगमेंट और बने। फिर उसके बाद भी जो गैप रह जाता है वो गैप फिल करने के लिए लाइगेज की एक्टिविटी दिखाई।
So DNA biosynthesis proceeds by alternate activities of polymerase 3 and polymerase 1, but still some gaps are left. In the newly synthesized strand. खाली ये शॉर्ट में लिख लो, वही वाला जो लास्ट वाला पोर्शन जो आपको नहीं समझ में आएगा. But still some gaps are left in the newly synthesized strand, which are finally filled by activity of enzyme ligase. यही जो है ये फिगर 3 में दिखाया है. This is shown in figure 3. Activity of polymerase 3 followed by activity of polymerase 1, that keeps going alternately, and then finally the gaps in the newly synthesized strand are filled by activity of ligase enzyme, and then the complementary strand becomes continuous, and therefore double stranded DNA is formed. अब जो है वो मिस्टेक्स जो है वो बताने के पहले एक्चुअली जैसे कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए का जो होता है वो तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जिसका होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री वाले का होता है. कॉम्प्लीमेंट्री वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला माना जाता है. 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला मेन कोडिंग स्ट्रैंड होता है. जो जितना मतलब कोडिंग वाला जो हिस्सा जो होता है, क्योंकि बहुत सारा डीएनए का या जीनोम का जैसे बताया था बहुत सारा पार्ट तो एक्चुअली कोड कैरी ही नहीं करता है, लेकिन अगर हम जो पार्ट कोड कैरी करता है उसको भी देखें तो वो तो डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है. तो एक तो मेन स्ट्रैंड तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला माना जाता है, और कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला माना जाता है. तो कोड जो होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले पे होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले का होता है. तो अभी पहले जो है अभी फिर जब लिख के जब जो है वो भेजेंगे उसके पहले एक चीज जरा सी दिखा सकते हैं. जो आज जो मैंने जो डॉक फाइल अपलोड करी है उसको अगर खोलो, अभी तुम लोग डाउनलोड कर पाओगे, खोल पाओगे? देखो खोल के, अगर खोल पाओ जो अभी आज जो डॉक फाइल अपलोड करिए फिडेलिटी इन डीएनए रेप्लिकेशन, फिडेलिटी इन डीएनए रेप्लिकेशन डॉक फाइल जो अपलोड करिए उसको खोलो. तो उसमें जो है फर्स्ट पेज पे तो कुछ लिखा हुआ है उसको छोड़ दो. सेकंड पेज पे जाओगे तो वो दिखाया है जो ये मतलब बेसेस नाइट्रोजनस बेसेस में जो बताया था कि टॉटोमेरिक फॉर्म भी हो सकते हैं. कॉमन फॉर्म कीटो फॉर्म होता है, और वही कॉमन फॉर्म लिखा हुआ है कीटो फॉर्म जो हम लोग नॉर्मली जो बनाते हैं बेस का वो तो कीटो फॉर्म बनाते हैं.
लेकिन इसमें दिखाया हुआ है रेयर फॉर्म इनॉल वाला होता है, कॉमन फॉर्म कीटो वाला होता है। तो कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म सबका दिखाया हुआ है, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन। और उसके नीचे जो है कॉमन बेस पेयरिंग अरेंजमेंट दिखाया है, जो अभी तक कई बार बता चुके हैं। कॉमन बेस पेयर अरेंजमेंट जो है ATGC जो होता है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। लेकिन इन्होंने AT और GC दोनों में इन्होंने जो है खाली 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। क्यों? पता नहीं, एक में 3 बनाना चाहिए थे इनको। एक सेकंड, जो ये DNA एंड RNA वाला, वही DNA एंड RNA वाला जो मैंने भेजा हुआ है, उसमें एडेनिन, थाइमीन के वही 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ग्वानिन, साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए हुए हैं, जो नॉर्मल होता है। पता नहीं इन्होंने 3 क्यों नहीं दिखाए। फिडेलिटी वाला है तभी भी इनको दिखाना तो चाहिए ना, पता नहीं कुछ। इन्होंने क्योंकि ग्वानिन का जो है वो NH2 कहाँ गया, एक मिनट, कुछ थोड़ा सा वैसे एक्चुअली उसमें ऊपर ये फिडेलिटी वाला है ना, वो फिडेलिटी वाला ठीक है, फिडेलिटी वाला जो है वो अभी मत देखो। फिडेलिटी वाला नहीं, ये वाला इससे मैंने बताया था, ये वाला बताया तो था एक दिन ना, इससे इस वाले से भी DNA एंड RNA .doc वाला जो भेजा था, इससे भी बताया तो था एक दिन। ये वाला बेटर है, वो फिडेलिटी वाले में अनयूजुअल चीजें दी हुई हैं ना, इसलिए वही गड़बड़। नहीं, ये DNA एंड RNA वाले में देखोगे तो वो पहले भी जो बताया था, ये जैसे इससे ये समझ में आ गया था, क्योंकि अब जो है ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे इसलिए दोबारा बताने लगे थे। DNA एंड RNA .doc का पेज 5 खोलो, एक जो डबल हेलिकल उसमें कलर्ड वाला बना हुआ है, उसके नीचे पेज 5 ऑफ DNA एंड RNA .doc। इसमें जो कलर में AATTGGCC बना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये तो वो हुआ जैसे मतलब लीडिंग स्ट्रैंड हुआ या कोडिंग वाला स्ट्रैंड हुआ, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बना है। और बेस पेयर भी एकदम इन्होंने कायदे से इसमें दिखाए, जैसे AT के बीच में 2 बॉन्ड बने, डबल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए GC वाले के बीच में खड़े खड़े 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं।
तो इससे बस यही बताना था कि जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो लिखा तो ऑटोमेटिकली यू नो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये हुआ। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना। जैसे ए टी टी जी जी सी सी है, अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया टी टी ए सी सी जी जी, और ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला चलेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये पहले कलर में बना के दिखाया हुआ है बहुत अच्छे से, और उसके नीचे जो है उसी को जस्ट ऐसे लिखा हुआ है 5 प्राइम ए टी टी जी जी सी सी 3 प्राइम, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम टी टी ए सी सी जी जी 5 प्राइम। ठीक है, तो ये इतना अगर समझ में आ गया तब फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन समझ में आएगा। पर ट्रांसक्रिप्शन के पहले अब वही फिडेलिटी वाला, या मतलब मिस्टेक्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एकदम वही मतलब मैथ की तरह जो है वो चलता है कि डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, उससे दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो गए, दोनों टेम्पलेट की तरह हो गए, और दोनों में जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, तो फिर 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पीस बन जाएंगे, और दोनों जो है एक एक डॉटर सेल में चले जाएंगे। तो उस तरीके से एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, सबका दोनों का अपना अपना जीनोम होगा। तो ये तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन इस प्रोसेस में जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जब दो पेरेंट डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं और उनमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आके जुड़ते हैं, उस समय जो है कुछ फिडेलिटी के चांसेस होते हैं। तो मतलब जब टेम्पलेट्स से टेम्पलेट में जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आके जुड़ते हैं, बनते हैं, और उससे 2 नए जो हैं वो डॉटर सेल्स के लिए 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब बनते हैं, वहाँ पे उस समय जो है मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट्री दोनों टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा होता है। तो उस समय अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं कि नहीं होती हैं, कितनी मिस्टेक होती है, उसको हम लोग कहते हैं फिडेलिटी इन डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस और द मिस्टेक्स इन डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। फिडेलिटी मीन्स लॉयल्टी, दैट हाउ लॉयली द DNA replicates itself. Is it foolproof or there are some mistakes? So although there are very few mistakes in DNA replication, but there are chances of some mistakes in DNA replication. So because I told you that the DNA replication is controlled by different DNA polymerase enzymes, and also it follows the standard Watson-Crick base pairing. But sometimes in this standard Watson-Crick base pairing, there can be unusual type of base pairing. अब unusual type of base pairing वो एक बहुत बड़ा एरिया है अपने में मिस्टेक्स इन डीएनए रेप्लिकेशन का, क्योंकि उसी की वजह से म्यूटेशंस होते हैं, उसकी वजह से नई स्पीशीज बन जाती हैं, और वो म्यूटेशन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। उन म्यूटेशन से कभी कभी जो है वो ऑर्गेनिज्म को उसकी अपनी स्पीशीज के अदर ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में कभी कभी उसको एडवांटेज भी मिल सकता है, और कभी कभी उससे उन मिस्टेक्स की वजह से उसका बुरा भी हो सकता है। मतलब मिस्टेक्स या म्यूटेशंस की वजह से कभी कभी उसमें गंदे फीचर आ सकते हैं, कोई डिजीज हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। ये सभी चीजें जो है मिस्टेक्स या फिडेलिटी इन डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से होती हैं, और कभी कभी उससे जो है अच्छे फीचर्स भी आ सकते हैं, which give the organism advantage over other organisms of its own species. So mutations can be good also, mutations can be bad also, it depends.
and basically these mutations, the chances of error, the new characteristics arising out of this these mistakes in DNA replication, that is called as loyalty or fidelity in DNA replication process. And why this occurs? Because you see, normally the bases are in the keto form, but sometimes there may be some bases which are there in the enol form. And if they are in the enol form, or if they are in a particular protonated form, then there can be erroneous base pairing because of the protonated form of a certain base, or because of the enol form of a certain base. It can form base pair of unusual type. जैसे normally Watson-Crick base pairing के according adenine should pair up with thymine and guanine should pair up with cytosine. But it can happen that the adenine instead of pairing up with thymine, it pairs up with some other base, and this is shown in this doc file that I just uploaded today, fidelity in DNA replication. In this file, if you go on page 3 of this file, fidelity in DNA replication .doc, then there you can see these are the wobble base pairs. वॉबल बेस पेयर्स का मीनिंग होता है मिसमैच्ड और मिसपेयरिंग या मिसमैच्ड बेस पेयर्स को वॉबल पेयर्स बोलते हैं. जैसे एडेनिन थाइमीन के बीच में यूजुअल बेस पेयरिंग होती है. अगर आप ये दोनों फाइल्स खोल के देखोगे, एक फिडेलिटी इन डीएनए रेप्लिकेशन और दूसरी DNA एंड RNA.doc. इसको आज आप होमवर्क की तरह करना, दोनों फाइल अगल बगल खोल के बैठना, फिडेलिटी इन DNA रेप्लिकेशन और DNA एंड RNA.doc फाइल. तो DNA एंड RNA.doc फाइल में नॉर्मल बेस पेयरिंग शो किया हुआ है कि AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं, और उसमें सारे बेसेस जो हैं कीटो फॉर्म में दिखाए हुए हैं वॉटसन-क्रिक बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग. और जो ये फिडेलिटी इन डीएनए वाला फिडेलिटी इन डीएनए रेप्लिकेशन वाली जो डॉक फाइल है, इसमें वॉबल बेस पेयर्स दिखाए हुए हैं जिसमें अनयूजुअल बेस पेयरिंग है. जैसे ग्वानिन थाइमीन के साथ इसमें थाइमीन ग्वानिन वॉबल दिखाया है. ऐसे ही जो है ग्वानिन साइटोसिन के बजाय साइटोसिन एडेनिन, और इसमें एडेनिन जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, वो प्लस करके दिखाया है, और वो प्रोटोनेटेड वाला हाइड्रोजन भी रेड में दिखाया है और लिखा है साइटोसिन एडेनिन प्रोटोनेटेड वॉबल. ये दो वॉबल बेस पेयर्स दिखाएं, मतलब दीज आर अनयूजुअल बेस पेयर्स. अब इसके अलावा भी और भी चीजें होती हैं. जैसे जिस समय रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो टेम्पलेट के साथ जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाले, जिससे डबल स्ट्रैंडेड बनता है, उस समय अगर जो है एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आ गया या एक न्यूक्लियोटाइड मिसिंग हो गया, तो उससे भी अगर एक्स्ट्रा आ गया तो उठा हुआ लूप ऐसा बन गया, मिसिंग हो गया तब भी एक जो है वो वहां पे गड़बड़ हो गया, तो उस तरीके से भी फिडेलिटी आती है. Fidelity is not only because of this unusual base pairing, which does not follow Watson-Crick base pairing, but it is also due to other mismatches or other errors. Other errors are like extra nucleotide or missing nucleotide. So that also gives fidelity in DNA replication or mistake in DNA replication. These are all the things which lead to mistakes
ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अब आप हेडिंग डाल लो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाट इज मेंट बाय फिडेलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज मेंट बाय फिडेलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें लिखो, it means there may be some mistakes during DNA replication process. It means there may be some mistakes during DNA replication process. Although the DNA replication process is almost perfect, although the DNA replication process is almost perfect, but there are chances of mistakes in the growing DNA strand. But there are chances of mistakes in the growing DNA strand. These mistakes occur when the base pairing does not follow the standard Watson-Crick rule. These mistakes occur when the base pairing does not follow the standard Watson-Crick rule. Occasionally, a base may occur in enol form. Occasionally, a base may occur in enol form or in a protonated form, which may lead to mismatched base pair. Such mismatched base pairs are called wobbles. Such mismatched base pairs are called wobbles. Although DNA polymerases have a proofreading activity. बिल्कुल जैसे हम लोग कोई चीज लिखते हैं उसके बाद में उसको दोबारा पढ़ के देखते हैं कि जो है वो कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई गलती तो नहीं हो गई। उसी तरह से डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं वो भी उनमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। वो लगातार जो है ये चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है, और अगर गलत कहीं दिखता है तो उसको रिपेयर भी करते हैं। तो ऑल्दो डीएनए polymerases have a proofreading activity,
and repair if any error is noticed. Although DNA polymerases have a proofreading activity and repair if any mistake occurs, but sometimes wobble base pairs may remain uncorrected. तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो वैसे लगातार गलती सुधारता रहता है। अगर कहीं उसको दिखता है कि मिसमैच हो गया है तो करेक्शन करता है, रिपेयर करता है, लेकिन कभी कभी ये वॉबल बेस पेयर जो है वो गलती से रह जाते हैं, उनका करेक्शन जो है वो रह जाता है, तो वो सरवाइव कर जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन होते हैं। So when wobble base pairs survive, or there is an extra nucleotide in the growing strand, or missing nucleotide in the growing strand, it leads to mutations. These mutations can cause genetic disorders. Cancer and other diseases. These mutations can cause genetic disorders, cancer and other diseases. Or they may be good. Mutations. This is the natural process of evolution. नेचुरली तो ऐसे ही इवोल्यूशन होता है, कभी म्यूटेशन हो गए, कोई स्पीशीज बन गई, या कभी जो है म्यूटेशन से कुछ अच्छा बन गया, या कभी म्यूटेशन से खराब बन गया. सो दिस इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. This process of incorporation of mistakes at the time of DNA replication. This process of incorporation of mistakes at the time of DNA replication is known as fidelity in DNA,
replication is known as fidelity in DNA replication. ये तो फिडेलिटी वाला हो गया या मिस्टेक्स वाला हो गया। तो अब ये रेप्लिकेशन और मिस्टेक्स इन डीएनए रेप्लिकेशन ये पूरा हो गया। अब जो है वो जो सेंट्रल डॉगमा के जो 2 स्टेप हैं, मतलब डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, वो कराएंगे। So now we will discuss the 2 steps in the central dogma of molecular biology, that is transcription followed by translation, which leads to protein synthesis. तो अब डीएनए रेप्लिकेशन वाला तो खत्म हो गया। अगर डीएनए रेप्लिकेशन पे अगर लॉन्ग आंसर आता है तो जो ये लिखवाया, जितना पूरा डीएनए रेप्लिकेशन में जो लिखवाया है और ये मिस्टेक्स वाला, ये सब पूरा का पूरा आपको उसमें लिखना है। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्क्राइब डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें ये सारा पूरा आएगा। ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस और फिगर्स स्कीमेटिक वाले, और उसके बाद ये मिस्टेक्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी उसी में आएगा। और चाहे जो है ये, मतलब इसमें चाहे आप वोबल बेस पेयर या नॉर्मल बेस पेयरिंग दिखा पाओ या ना दिखा पाओ, लेकिन वही जो ये फिगर 2 और 3 जो इसकी पीडीएफ की फिगर 2 और 3 जो इस वाले पीडीएफ की है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन वाले पीडीएफ की जो फिगर 2 और 3 है, वो यही डीएनए रेप्लिकेशन में ही बनी हुई हैं। ये दोनों बनानी जो है वो जरूरी है। और डीएनए रेप्लिकेशन का ब्रीफ में, क्योंकि इसमें बीच का वही थोड़ा सा हिस्सा है जो आपको नहीं समझ में आता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट वाला एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन वाला जो है वो पूरा लिखवा दिया। अब जो है ट्रांसक्रिप्शन हेडिंग डाल के लिख लो, या फिर जो है वो एक लाइन लिख के छोड़ दो, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन पहले समझाएंगे फिर लिखवाएंगे। तो एक लाइन लिख के छोड़, या हेडिंग डाल दो प्रोटीन सिंथेसिस, हेडिंग डाल दो प्रोटीन सिंथेसिस, और उसमें एक लाइन लिख दो कि प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इन्वॉल्व्स 2 steps. Protein synthesis from DNA involves 2 steps: transcription followed by translation. Protein synthesis from DNA involves 2 steps: transcription followed by translation. तो नेक्स्ट क्लास में फिर ट्रांसक्रिप्शन समझाएंगे। ठीक है, इसको यहीं पे हम खत्म करें। नेक्स्ट क्लास में ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, और कल जो है वही EIA वाला कराएंगे, EIA एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ओके मैम, थैंक यू।